बाइक मैंने लोन पे ले ली, कार मैंने लोन पे ले ली, घर लोन पे ले लिया। 2015-14 में मेरे को ऐसा लगा कि मैंने कुछ ना कुछ तो यार अपनी लाइफ में ना गलत कर दिया है लोन लेके। क्योंकि लोन ना सर बड़ा इजी लगता है हमको, छोटी ईएमआई पे हमें लगता है हाँ वी कैन अफोर्ड इट, बट Hi everyone, Jai Hind, Jai Bharat, Jai Mother. Today I've got Jaganmeet Singh Gandhi with me, and he is a second officer who's sailing presently with Nakilat, who started with Anglo Eastern, sailed there, then moved on to Thome, then Williamson, presently with Nakilat. And here is this young man who has seen a lot of failures. Today he is planning to become, he is actually a certified financial planner. जिन लोगों को नहीं पता है मैं बता दूं, जब आप लोग मर्चेंट नेवी में जाते हो, व्हेन यू स्टार्ट अर्निंग मनी, तो फाइनेंस इज द वन थिंग वेयर वी ऑल लैक। जैसे अगर मेरी बात करी जाए तो मैंने पैसा कमाया, लेकिन क्या किया, कुएं में डाल दिया। जय माता दी। जनरली जहाजी लोग क्या करते हैं, जहाज पे जाते हैं, पैसा कमाते हैं, पैसा आके उड़ाते हैं, और फिर जब पूरे खाली होते हैं फिर जहाज पे चले जाते हैं। तो इसीलिए राजीव कौशिक सर के साथ मैंने कम से कम 70 to 80 वीडियोस बनाए। बट सडनली ऑन लिंक्डइन वन डे आई केम अक्रॉस अ वंडरफुल लिंक्डइन मैसेज फ्रॉम जगनमीत सिंह गांधी, एंड आई केम टू नो दैट ये जहाजी हैं, ही इज अ सेकंड ऑफिसर who is a certified financial planner, and he wants to guide these youngsters out there about financial planning. So I thought, why not make a video with him? So sorry for the long introduction. So that Jaganmeet Singh Gandhi, thank you for joining me. Jaganmeet, how are you? I'm fine, sir. Thank you so much for having me on your show. So Jaganmeet, let's keep it short and simple. बस पहले बताओ यार, brief about you if I missed out anything. Brief about your journey. Sir, my journey has been a roller coaster ride up till now. I started with a very humble background. My parents both they have struggled and worked very hard to place me where I am today in this position. My father was having work with this Delhi Jal Board water tankers we used to have, and my mother is a government school teacher. She after giving birth to me, she decided to take teaching as her career, because somewhere or the other we found that the salary which we were earning from my father's business was not sufficient to sustain. So and me and my brother worked really hard to bring our family to a level where we can at least sustain ourselves and take our family way ahead. And this is a brief introduction about my family. And my education, I've done pre-C from IMI Greater Noida. I have worked with Anglo Eastern. I was a cadet with Anglo Eastern, third officer with there, second officer also. I got promotion over there, and then I ventured out into different companies to learn and understand different companies work culture. Because in Anglo Eastern I was always surrounded with Indians. So when I moved out, I ventured out, and I understand there are multinational setups and different companies work differently. And I wanted more and more exposure, apart from only an Indian specific group. So I ventured out there. Ji. So Jaganmeet, at the age of 34, you are a second officer. Any particular reason for being a second officer? Maybe you wanted to venture out into LNG carriers where the promotion is slow, or you sailed less. What was the reason? Sir, to be very honest, I was not looking, earlier when I was in Anglo, I was very aspirational, and, I was looking, yes, I want to become a captain one day. But, somewhere or the other, I found that, my, like, everybody has their interest, and they are, awakening that, this is your limit and you should, enjoy life at this particular stage. So I was enjoying being a second officer. I enjoy it today also. I love my job. I love Merchant Navy, and but to be in second officer, I in 2013 I was giving chief mate exams phase 1 also. I cleared all the exams, and somewhere that time that around I took a home loan. एंड ये उस टाइम से ही मेरी शुरुआत हुई फाइनेंशियल जर्नी में, क्योंकि
जैसे ही मैं ऑफिसर बना 2012 में, आई थिंक आई गॉट माय सेकंड मिड सीओसी एंड आई ज्वाइन एज अ थर्ड ऑफिसर। तो एक कॉन्ट्रैक्ट करके जैसे जो जूनियर ऑफिसर्स होते हैं वो अपने सीनियर से मेंटरशिप मांगते हैं कि सर बताइए कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मेरे को शिप पे ऐसे मेरे कलीग्स मिले जो ऑल ओवर मुंबई से बिलोंग करते थे। तो मैंने, एक बड़ा साहब थे जैसे आप जैसे, मैंने उनसे गाइडेंस के लिए मांगा कि सर कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि आप इतने सीनियर हो एंड यू हैव सीन द लाइफ टाइम, तो आप क्या मुझे गाइड करते हैं अपनी जर्नी के हिसाब से। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने फिर एक सेकंड ऑफिसर थे वरुण मल्होत्रा करके, उन्होंने मुझे बहुत इंस्पिरेशन दिया और मोटिवेशन दिया कि जगन कि यार बस आके सेलिंग करते रहेंगे, बार बार यहीं पे रहना है जिंदगी में या कुछ और भी करना है। तो मेरे को हिट किया एक दिन रात को, मेरे वॉच पे उनसे मेरी बात चल रही थी। तो ठीक है, मैंने आया, मैंने प्लान किया, मैंने प्रॉपर्टीज के बारे में सर्च करने लगा। तो इन इधर दिल्ली एनसीआर में द प्राइसेस आर रियली टू हाई, they are not, I think it is not affordable, I cannot afford it. So I went to Dwarka, Greater Noida, everywhere. वहां पे सर सिर्फ सपने बेचे जा रहे थे सर। मेरे को ये लगा, क्योंकि ऑन पेपर एवरीथिंग वाज सोल्ड आउट, दे आर सेइंग दैट 80% प्रॉपर्टीज आर सोल्ड आउट, बट जब आप जाके एक्चुअली जमीनी हकीकत देखोगे तो वहां पे एक ईंट भी नहीं पड़ी होती थी। तो मैंने कहा कुछ तो गलत चल रहा है यहाँ पे। तो एक एक सेंस आ जाता है, आप फील कर लेते हो कि ये जो भी है। सर पूरे प्लेटफॉर्म बना रखे थे वहां पे, वो जेसीबी सब कुछ काम कर रही होती थी। प्लेटफॉर्म से सपने दिखाए जाते थे कि वहां पे ये टावर आएगा, ये टावर आएगा, यहाँ पे ये गोल्फ कोर्स आएगा। तो मुझे लगा कहीं ना कहीं मेरे को ट्रस्ट नहीं आया। तो सर मैं वहां से हट के ना, मैंने नीमराना की तरफ देखा, क्योंकि आज जो ये RRTS नमो भारत ट्रेन चल रही है, ये 2013 में दिस कॉन्सेप्ट वाज जस्ट टेकिंग बर्थ। तो मेरे को उधर एक डेवलपर मिले जो उन्होंने आर्मी के और ये सारे जलवायु विहार और ये सब बनाए हुए थे। तो मेरे को एक डेवलपर मिले जो मेरे को जेन्युइन लगे। तो मैंने उनसे गाइडेंस ली। तो उन्होंने बोला कि आप इन्वेस्ट कीजिए, बट एक डेकेड तक आपको, एक दशक तक होल्ड करके रखना पड़ेगा, तभी आपको रिटर्न मिलेगा प्रॉपर्टी से। तो मैंने उस टाइम पे सर जो नॉलेज थी और जो गाइडेंस मिली थी, मैंने एक फेथ ऑफ लीप लेके इन्वेस्ट कर दिया उस प्रॉपर्टी में। अब उस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट तो कर दिया, बट उसके बाद आज तक मेरे को ऐसा लग रहा है कि उधर प्राइसेस नहीं बढ़े, क्योंकि अभी तक मैं अगर सेल के भी जाता हूँ तो मेरे को उस प्राइस से नीचे ही कोट किया जाता है हमेशा। जो आपने उस टाइम लिया था उससे नीचे कोट किया जाता है। जी 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 जी, वहां पे लोकली ऐसे बोलते हैं। बट नीमराना इज अ वेरी गुड प्लेस, इट्स अ ग्लोबल सिटी इन द फ्यूचर अपकमिंग, एंड RRTS सब कुछ वहां पे आएगी, कार्गो एयरपोर्ट आने वाला है। बट वो दीज आर ऑल फ्यूचरिस्टिक सर। वहां पे जापानीज जोन एक बना हुआ है, एक इंडियन जोन बना है, जहाँ पे हीरो कहने की का सबसे बड़ी। सो जगन, जी मैं कहना चाहता हूँ कि आपने लीप ऑफ फेथ लिया, बट इट डिड नॉट टर्न आउट टू बी एज व्हाट इट वाज प्रॉमिस्ड और व्हाट यू थॉट, राइट? right. Basically I have to, one more decade I have to hold on to that तो property, होम yeah. लोन जो लिया था उसके बाद क्या हुआ? चलो, एक बहुत जल्दी आपने होम लोन लिया, फिर उसके बाद? हाँ, जब मैंने सर उस टाइम पे, जब नए नए सेकंड ऑफिसर बने थे, तो मेरा बहुत सारे एस्पिरेशन होते हैं, सबके होते हैं। मैंने भी वो सैमसंग नोट 2 उस टाइम चल रहा था बड़ा, मैंने वहां पे शिप पे कोट्स मंगाने लग गए, जैसे हम नॉर्मली करते हैं। US से मंगाए, यूरोप से मंगाए कोट। हम उस टाइम पे US यूरोप के ट्रेड पे थे। तो वहां पे बड़े महंगे आ रहे थे, $1500 के मिल रहे थे। मैंने फिर इंडिया आके कैश पे नोट 2 खरीदा था, जब वो लॉन्च हो गया था नया नया, 40,000 तब आई थिंक उसकी कॉस्ट होती थी। तो मेरे लिए उस टाइम पे 40,000 बहुत था, हमारी फैमिली में 40,000 रुपीज। तो मैंने भी वो चीज की, मैंने फिर एक बाइक ली, पल्सर RS 200। जैसे एस्पिरेशंस होते हैं हमारे सेकंड, भाई आ गया पैसा खर्च कर दो। फिर हमने होंडा सिटी भी खरीदी, मेरे भाई की शादी थी, हमने कहा चलो भाई की शादी पे हमने होंडा सिटी भी लेनी है। तो ये सब क्या हुआ, ये सब लोन पे लेता गया मैं। वो कैश पे ले लिया, मोबाइल, बाइक मैंने लोन पे ले ली, कार मैंने लोन पे ले ली, घर लोन पे ले लिया। तो एक टाइम पे ना एक प्रेशर आ गया था मेरे ऊपर, 2015-14 में मेरे को ऐसा लगा कि मैंने कुछ ना कुछ तो यार अपनी लाइफ में ना गलत कर दिया है लोन लेके। ये सभी करते हैं एक्चुअली, क्योंकि लोन ना सर बड़ा इजी लगता है हमको, छोटी EMI पे हमें लगता है हाँ वी कैन अफोर्ड इट। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू आर बेसिकली आप स्पेंड कर रहे हो फ्यूचर अर्निंग्स, आज ही आपने स्पेंड कर दी है उसके लिए। और आप कहीं ना बेसिकली आप एक स्लेव बन के रह जाओगे किसी भी कंपनी में, अगर आपने। और जब मैंने सर, मैं आपको एक पर्सनल बात शेयर करता हूँ, मैंने जब लोन लेना था 24 लाख का, तो मेरे को जो लोन वाला था वो मेरे को फोन करके बोलता है, सर आपकी जो लोन की एलिजिबिलिटी है वो 2.25 करोड़ की है, तो आप
24 लाख का क्यों ले रहे हो? तो सर मैंने उसको एक ही क्वेश्चन बोला कि यू विल वर्क इंस्टेड ऑफ मी इन दैट कंपनी, 2.25 करोड़ का मैं लेता हूँ, तो आई हैव टू वर्क फॉर सो लॉन्ग, मैं फंस के रह जाऊंगा किसी भी कंपनी के तो पास। तो मेरे को पौने तीन लाख की इंस्टॉलमेंट हर महीने की बनेगी। जय माता हाँ दी। हाँ हाँ, तो वो कौन करेगा पे? मैं कहा भाई मैं आई कैन नॉट अफोर्ड इट। 24 लाख ही मेरे को बहुत, मतलब सर मेरे को 80,000 रुपीज मेरी मतलब लगभग हुई थी मिला के ईएमआई, तो मेरे को वो भी बहुत भारी पड़ती थी। 80,000 मतलब मेरे, क्या किया जब रेजिडेंशियल लिया तो मेरा कमर्शियल का भी मन कर गया 1-2 साल में। 2015-16 में मैंने कमर्शियल भी एक ले लिया, क्योंकि मेरे को एक्चुअली मेरा एंड था कि कमर्शियल लेना है एक्चुअली। और उस टाइम पे आई थिंक एनआरआईज को ना कमर्शियल लोन्स नहीं मिलते थे, अभी का मुझे रिवर्स देखना पड़ेगा। उस टाइम पे कमर्शियल प्रॉपर्टी पे एनआरआई को लोन नहीं मिलता था, तो देयर वाज एनआरआई हाउसिंग लोन। तो मैंने सोचा हाउस लेते हैं, लोन लेके चुका दूंगा, फिर बेच के ना वो पैसा इन्वेस्ट कर दूंगा, वो मैं कमर्शियल में डाल दूंगा। बट वो थोड़ा सा वहां पे मेरी प्लानिंग गड़बड़ हो गई, तो मेरे को बहुत प्रेशर आया। एंड मैंने फिर सबसे पहले ये सोचा कि भाई पहले डेट फ्री होना है सबसे पहले। उसके बीच में मैंने जॉब्स भी की थी, अपनी ये लैंड जॉब्स की थी 3 3 मंथ, बट आई कुड नॉट सस्टेन ड्यू टू ईएमआई प्रेशर। मेरे पर ईएमआई प्रेशर इतना ज्यादा था, मैंने जब अपने डॉक्यूमेंट्स दिए थे कंपनी को, ये क्या कहते हैं कॉर्पोरेट में, तो वो मेरे को बोल रहे थे आप सस्टेन कैसे कर रहे हो इस इस सिस्टम, इस सेटअप पे। तो मैंने कहा सर आप बिल्कुल सही समझ रहे हो कि ये मेरे को भी फील हो रहा है कि आई कैन नॉट सस्टेन फॉर नेक्स्ट 3 4 मंथ्स। इसके बाद तो मैं बैंकरप्ट हो जाऊंगा, या तो नेगेटिव में चले जाएगा मेरा नहीं तो पैसा। झाड़ पे जाना है। तो बेसिकली बीच में आप ट्राई हाँ, कर रहे थे कि मैं शिपिंग छोड़ूं, लेकिन हो ही नहीं पा रहा था। हो ही रीजन नहीं पाता 30,000 रुपए क्योंकि, की किस्त थी हर महीने की। हाँ वो वो कहाँ से मर्चेंट नेवी निकलेगी? ही बर्दाश्त कर सकती है। हाँ 40,000 का मेरी मेरी सर वहां पे सैलरी थी 40,000, बट आई कुड नॉट सस्टेन दैट अच्छा, 80,000। माय सॉरी जगनमीत, आई एम पुटिंग क्वेश्चन ये है कि आप सेलिंग छोड़ के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आना क्यों चाहते थे? अब इस पे आते हैं। अच्छा सर, वो तो सभी वहां पे फीलिंग ऐसी सारे जब जितने भी मैं शिफ्ट में सेल किया हूँ, सभी आसपास जो भी मेरे साथ सेल किए वो सभी बोलते थे यार, मतलब फैमिली से दूर, सर सबकी एक कॉमन है, क्योंकि फैमिली को छोड़ के हमको जाना होता है सबको एक न एक। तो वो तो एक सबके झाजी के दिल में होता ही होता है। वो है कि हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी अलग अलग होती है, कोई टीयर 1 से आता है, कोई टीयर 2 सिटी से आता है, कोई टीयर 3 4 से आता है। जो मैंने देखा है, मैंने देखा है जो छोटे टीयर 3 4 से आते हैं, उनके एस्पिरेशन और बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो बेचारे आके ना पहले घर ले लेते हैं, उस पे वो फंस जाते हैं पूरा ही पूरा। उनको प्लानिंग की बहुत सख्त जरूरत है इस टाइम पे। अच्छा अच्छा जगन, हाँ अभी तुम्हारी बात करते हैं फिर उन पे आते हैं। तो हाँ जी, हाँ बेसिकली तुमने बीच में सोचा कि सेलिंग छोड़ी जाए, बट बिकॉज ऑफ दिस लोन कहीं ना कहीं वो सपना भी तोड़ा गया। जी भाई ऑफ जी कोर्स। जी। फिर आपको फिर जी, वापस सेलिंग पे चले गए उसके बाद। सेलिंग में चले गए, फिर वही, क्योंकि फिर समझ नहीं आता क्या करना है। मैंने बीच में फिर एक ना मेरे को समझ आया कि एक फ्रेंचाइजी लेके भी बिजनेस किया जा सकता है, जहाँ पे यू विल गेट मतलब सपोर्ट फ्रॉम अ फ्रेंचाइजर। तो मैंने बास्किन रॉबिन्स की भी फ्रेंचाइजी ली थी अपने भाई के साथ, आई वाज पार्टनर। तो मी एंड माय ब्रदर स्टार्टेड दैट वेंचर। वो हमने 2 साल पूरा सही चलाया था। बास्किन रॉबिन्स की फ्रेंचाइजी वाज मतलब इट वाज वर्किंग, but it was not giving that much earnings from it. फिर But टाइम yes, it पास was, चल रहा था, थोड़ा बहुत चल रहा था, बट उससे गुजारा करने लायक नहीं था मामला। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं सर। हमने एक्चुअली इन्वेस्टमेंट्स ना डिफरेंट डिफरेंट मतलब ली थी, जैसे फैमिली में ही ली थी, तो वी हैड टू रीपे टू देम, तो वो हमने रीपे कर पाए हम लोग। बट मैंने जो इन्वेस्ट किया है, मेरे ब्रदर ने इन्वेस्ट किया, हम वो नहीं कर पाए रीपे, क्योंकि 2 साल में इतना निकल ही नहीं पाया मतलब वापस उससे, तो कहने क्योंकि का वो मतलब है आपने जब फ्रेंचाइजी लिया अपने फैमिली के लोगों से भी, आसपास से भी लोन उठाए, और आपने हाँ ऑफकोर्स। फ्रेंचाइजी ली, और जो हाँ पैसा हाँ, क्योंकि कमाया, जो लोन चल इतनी रहे थे ना। मेहनत करी, बड़ी मुश्किल से फैमिली के लोगों को उतार पाए, आपका और आपके भाई का जो इन्वेस्टमेंट है वो फिर भी जीरो रहा। तो दैट हाँ वहां राइट पर भी राइट। एक जय माता दी हो गई। ओके, आगे जी बढ़ो। जय माता, हाँ वो क्योंकि सर कोविड हिट कर गया, और कोविड की वजह से इट वाज, जब ये मैंने 2 साल चला लिया, तो हमें कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आ गया था कि हम एक और स्टार्ट करके हम इसको स्केल अप कर सकते हैं दूसरे उसमें, क्योंकि बास्किन रॉबिन्स इज ओनली आइसक्रीम, तो आइसक्रीम में इतना इट्स ओनली टेकन एज अ डेजर्ट फॉर्म में। तो हमें वहां से समझ आया कि नहीं, हमें वी शुड एंटर इनटू अदर तो हमने फिर रोल्स मीनिया की भी फ्रेंचाइजी ली थी। तो वो हमने कोविड से 6 महीने पहले ली थी। उसमें भी हमने 25 तक इन्वेस्ट किए थे, बट वो भी फिर कोविड में एकदम 6 महीने में सर क्या ही चलेगा। जब तक हमने उसको स्टैंड किया, इतनी मेहनत से मैं जाता था, रोज सेटअप करता था पूरा स्टोर, वी हैव सेटअप।
बट वो भी कहीं ना कहीं 6 महीने में वो हो गया इस खत्म। बीच में कभी मन में नहीं आया यार कि यार मैं साथ साथ चीफ मिट के एग्जाम क्लियर कर लूं, ताकि एक बैकअप बना रहे यार, कि जैसे ये चीज नहीं चल रही, ये चीज नहीं चल रही, तो जो मैंने इतने साल मेहनत करी है चीफ मिट का, कम से कम वहां से अगर आगे बढ़ता हूँ तनख्वाह एकदम से डबल हो जाएगी। सर वही है ना, इसमें मैं सब कुछ अपना बिजी होता चला गया इन कामों में, क्योंकि चीप मेट के लिए यू हैव टू बी फ्री। इसमें आपको सेटअप करना इट वाज नॉट इजी, मतलब मैं आई वाज गिविंग माय होल हार्ट एवरी डे, गोइंग कम्यूटिंग और वो जगहें यहाँ से नोएडा सेक्टर 62, वैशाली सेक्टर 4 मेरे घर से दूर पड़ती थी वो। तो इट्स नॉट इजी कि आप पूरा दिन वहां पे भी ध्यान दे दो और यहाँ पे भी कर लो, इट इज नॉट इजी। तो वो कहीं ना कहीं वहां पे डिफिकल्ट हो गया। बट आपकी बात सही है कि अगर अचीवमेंट सोचते तो कर लेते, वो आगे डबल हो जाती सैलरी। तो मैं यहाँ पर ये एक वीडियो अलग से बनाऊंगा, बट पुटिंग इट अक्रॉस, और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर कोई मेरे से पूछे कि आइडियल टाइम टू स्विच टू डू समथिंग व्हाट यू पैशनेट अबाउट, या कुछ करना चाहते हो, देयर आर टू वेज, देयर आर टू, इधर यू स्टार्ट वेरी अर्ली व्हेन यू हैव एज बाय योर साइड, दैट इज आप थर्ड ऑफिसर बन के निकले हैं, ज्यादा भी पैसे की आदत नहीं लगी है, यू हैव नॉट स्टार्टेड अर्निंग सो मच, आपको लगे कुछ रिस्क है, एक आध सेलिंग करके आए, गो फॉर द स्विच, गो गिव योर बेस्ट शॉट, इफ यू पास फाइन, इफ यू डू नॉट लुक बैक। और अदर ट्रांजिशन फेजेस व्हेन यू बिकम चीफ ऑफिसर और सेकंड इंजीनियर, आपने कुछ सेल वहां से करनी शुरू कर दी, सो दैट इवन इफ यू फॉल बैक, इफ यू फेल, देन एटलीस्ट यू नो कि यू विल स्टार्ट फ्रॉम समवेयर ओवर है। दिस इज, ये जगन्मीत मेरा भी मानना है, मैं तुमसे बात करते करते चीजें समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि इधर स्टार्ट वेरी अर्ली, और स्टार्ट व्हेन ये तुमने जूस निकाल लिया इस प्रोफेशन का, जिसे तुमने बहुत कुछ दिया है इसने तुम्हें। सो ये मेरा मानना है, आई होप आई माइट बी रॉन्ग, तो इसमें आगे बढ़ते हैं। सो जगन्मीत, सो अब ये क्वेश्चन आता है कि अभी सेलिंग, हैव यू क्विट सेलिंग जगन्मीत, फर्स्ट क्वेश्चन। नहीं नहीं सर, बेसिकली देखिए ये जो मैं कर रहा हूँ सीएफपी मैंने किया, इट इज आउट ऑफ माय पैशन टू हेल्प अभी पीपल। इस पे आऊंगा मैं जगन्मीत, अभी क्वेश्चन हाँ, ये है, हैव यू क्विट सेलिंग, नो। सो नो अभी नो सेलिंग पे नॉट कैसे, 6 महीने में एक बार, साल में एक बार, कैसे, या नहीं, साल में अभी मैंने जब से मैं एंग्लो से निकला उसके बाद मैंने 1 ईयर में एक ही सेल मारना था मेरे को। तो एक एक साल में मैं एक ही सेल मारता 6 महीने का था एज करते हो, पर। एनआरआई कंप्लीट, जय माता दी। नहीं नहीं, एनआरआई कंप्लीट नहीं करूँ, आई एम पेइंग माई टैक्सेस एंड आई एम 2 to 4 वेरी months, हैप्पी। हाँ, ओके। वो तो डिपेंड अब करता है सर कहाँ पे, क्योंकि नखिलात में इट्स 4 on 3 off। तो उसमें मेरे को लकीली लास्ट कॉन्ट्रैक्ट में मेरे को उन्होंने जल्दी उतारे टाइम से पहले, क्योंकि वो सेटअप ऐसा था कि आई गॉट इट अर्ली रिलीज। तो बाकी 6 महीने का ही कॉन्ट्रैक्ट होता है, पर उसमें आगे पीछे हो जाता है। ठीक है, तो ये फाइनेंशियल प्लानिंग, सी अभी तक जगन्मीत, आई गॉट द आइडिया कि यू मेड अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स, आई हैव मेड ब्लंडर्स बिगर देन यू। सो हम्म। ये यू कम फ्रॉम अ नॉट इवन फ्रॉम टेक्निकल बैकग्राउंड, क्लास 12th किया, उसके बाद बीएससी नॉटिकल साइंस का सर्टिफिकेट मिल गया, वहां से फाइनेंस, ये मेरे लिए जाना जरूरी है, मतलब ये कहाँ से कीड़ा काटा। सर एक्चुअली मैं आपको अगर टू बी ऑनेस्ट बताऊं तो मेरी प्रिंसिपल ने ना, आई वॉज द गाय, मतलब मेरे जब एग्जाम में मार्क्स आए थे स्कूल में, तब मेरा ना वेटिंग लिस्ट में नाम था एक्चुअली में। बट मेरे पेरेंट्स वांटेड ऑलवेज टू गेट द साइंस। तो वो मेरे को वो बोल रही थी कि ही शुड बी गोइंग फॉर कॉमर्स। क्योंकि सर मेरे को ये बीच में मैंने एक करियर काउंसलिंग का भी एक सेशन अटेंड किए हैं, जहाँ पे मुझे समझ आया कि हमारे पेरेंट्स सोचते हैं कि आपको ये करना है, आप ये करना करो। बट एक्चुअली वो बंदा जो है ना, उसका जो एप्टीट्यूड है वो अलग चीज के लिए बना हुआ है। मेरा स्टार्टिंग से ही ना सर मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग था, मेरा उसमें रुचि थी मैथमेटिक्स। मेरा मतलब बहुत फेवरेट सब्जेक्ट था कहीं ना कहीं। तो मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। अब जैसे मैंने सीएफपी किया ना सर, मैं अब यहाँ पे मुझे आप सुबह से शाम तक बिठा दो, मैं आराम से करूंगा। मेरे को बहुत मतलब दिल से करता हूँ मैं ये। मैं बड़े खुशी होती है, मेरे सब घर वाले बड़े बोलते हैं अरे तू क्या है सुबह से रात तक लगा रहता है। मेरे को कोई रात को 10 बजे फोन करता है, आई एम मोर देन हैप्पी टू हेल्प हिम। मैं ऐसा That means बंदा हूँ you're on मैं। the right path, Jaganmeet. If हाँ, you're not feeling tired while राइट you're राइट, working, that means you're doing what you love. And if you do that, अभी लगेगा बस जगनमीत कि थोड़ा स्लो चल रहा है, बट आने वाले टाइम में तुम बहुत अच्छा कर सकते हो, ट्रस्ट मी। जी। मैं सर मैं दूसरों का टाइम देखता हूँ, क्योंकि मुझे पता है अभी मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, कस्टमर्स हैं, वो ना कनेक्ट करते हैं, फिर 2 दिन 3 दिन उसके बाद भूल जाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं अरे सर हम बिजी हो गए, सॉरी सर हम कनेक्ट करेंगे ये वो। मैं समझता हूँ सबकी, क्योंकि सब अपनी लाइफ में बिजी हैं एकदम। तो वो लोग सर कभी 10 बजे फोन करते हैं। अभी एक चीफ इंजीनियर सर हैं मुंबई से, वो रात को 10 बजे फोन करते हैं फ्री होके अपने पूरे दिन के दिनचर्या से।
तो सबका अपना अपना टाइम है, वो अपने अपने टाइम पे कॉल करते हैं, और मैं हमेशा किसी को ना नहीं करता हूँ। अगर मैं अवेलेबल हूँ तो मैं डेफिनेटली ज्वाइन करने की कोशिश करता हूँ कि भाई हाँ, उसको उस टाइम पे अटेंड कर सकूँ मैं। तो मेरे को बड़ी खुशी होती है किसी को भी बात करने के लिए। और हाँ, मर्चेंट नेवी से पहले आई वॉज वेरी सोशल। मैं स्कूल में अपने क्लासमेट्स के साथ तो बातें करते ही था, मैं अपने जूनियर और सीनियर्स के साथ भी मतलब बातें में बड़ा, मेरे को बड़ा मजा आता है लोगों से कनेक्ट करने में। बट कहीं ना कहीं जब मर्चेंट नेवी में आए तो ऑल मेल डोमिनेटेड, और वो सब आ गया, फिर वहां पे आइसोलेशन में रहने लगे। तो मेरा थोड़ा सा मेरा चेंजेस आए, मेरे को लगा कि आई एम रिस्ट्रिक्टिंग माई सेल्फ समवेयर। हालांकि मेरे को अब, क्योंकि मैं ऑफिसर बन गया हूँ, सेकंड ऑफिसर, मतलब मैंने इतने साल सेल कर लिया, तो आई एम यूज टू इट। अब मेरे को सेलिंग में भी मजा आता है, ऐसा नहीं है, सेलिंग में मुझे बहुत मजा आता है। सेलिंग में जाके एक पीसफुल एनवायरनमेंट लगता है मेरे को, वो मेरे को सबसे बेस्ट लगता है पार्ट, कि भाई अपना वॉच करो और सामने एकदम पीसफुल एनवायरनमेंट है, और वहां पे ये डिस्ट्रैक्शन नहीं है सर। इंडिया इधर क्या है, लैंड पे बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन है सर, और मैं समझता हूँ वो हर एक बंदे की जिंदगी में बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है। एक तो सोशली बहुत डिस्ट्रैक्शन है, रिलेटिव्स और सबका डिस्ट्रैक्शन होता है। तो मैं एक्चुअली बड़ा सिंपल बंदा हूँ, मैं ना ज्यादा मैं चाहता हूँ कि मैं जीऊं और लोग भी जिए, और जियो जीने दो वाला हिसाब किताब है। तो तो जगनमीत, ये अब ये क्वेश्चन आता है, कोविड के बाद ये सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर बनने का कैसे आया दिमाग में कि नहीं यार अब इसमें चलते हैं, ये अभी तक नहीं बताया आपने। सर पहले क्या हुआ था, जैसे कोविड हिट हुआ तो इट वाज मतलब इट वाज, आप समझ लीजिए मेरी पूरी लाइफ मेरे आंखों के सामने आता है, क्योंकि मैं आई वाज फाइंडिंग कि भाई मैं कुछ करूं अदर देन शिपिंग, कि भाई कुछ आगे कुछ कर सके हम लोग। फैमिली दूर रहते हैं, एट द एंड शादी होगी, फिर आगे बच्चे होंगे, तो फिर कैसे हम जाएंगे, कैसे मैनेज होगा। तो उसके लिए प्लानिंग होती है, बट कोविड हिट एंड कोविड ने सारे प्लान्स डिस्ट्रॉय कर दिए। तो इट टुक मी एटलीस्ट 1 ईयर टू मेरे को अपने को संभालने के लिए, क्योंकि 2019 में हुआ, 2020 में आई गॉट मैरिड, मेरी मैरिज थी, एंड देन आई डेंट वांटेड टू एनीथिंग स्टार्ट एकदम इमीडिएटली। तो मैंने अपना टाइम ऑफ लिया, मैंने बहुत सोचा उस पर, फिर मैंने कहा एक बड़ी प्लान डिसीजन लूंगा मैं, कि भाई सोच समझ के कि कहाँ गलती कर रहे हैं, क्या गड़बड़ हो रही है, हमने इतना पैसा भी लगा दिया, कोई रिटर्न भी नहीं आया। फिर ये सब कुछ मेरे को मेंटरशिप बीच में एक मेरे को एक वरुण मल्होत्रा है करके, सीएफए हैं, एंड ही इज वेरी उनकी बड़ी फैन फॉलोइंग है, एंड वो बहुत मेरे को, वो मेरे मेंटर है, मेरे लिए, वो भी झाजी मेरे है? नहीं नहीं, वो झाजी नहीं है, वो झाजी नहीं है, वो ही इज अ सीएफए। एंड वो भी अपने संडे के संडे रखते हैं सेमिनार्स। तो उनके फिजिकल सेमिनार्स मैंने अटेंड किए थे, तो उनसे मेरे को मोटिवेशन मिला, एंड उन्होंने एक मुझे डायरेक्शन दिया, उन्होंने इंडेक्स इन्वेस्टिंग सिखाई कि भाई ऐसे ऐसे करके होता है। तो मेरे को वहां से इंटरेस्ट फिर से जागा कि हाँ, इसमें भी करियर बनाया जा सकता है। फिर मैंने सोचा कि इसमें कैसे प्रोफेशनली एंटर किया जा सकता है, क्योंकि मैंने देखा सर इसमें क्या होता है, एंट्री लेवल जैसे हम देखते हैं एजेंट्स होते हैं, एलआईसी एजेंट्स, या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, या जो भी XYZ, इसमें और भी होते हैं, जनरल इंश्योरेंस में होते हैं, एजेंसीज लेते हैं। तो देर द एंट्री लेवल इज 10 प्लस 10 क्लास पास, या 10+2 ऐसे होते हैं। तो मैंने कहा यार नहीं, इसीलिए तो दिक्कत आ रही है, क्योंकि सर अगर कोई बंदा सिर्फ वो इस लेवल से स्टार्ट करेगा, तो वो आपको सिर्फ प्रोडक्ट ही सेल करेगा, वो आपकी नीड्स नहीं देखेगा। तो मैंने देखा कि सीएफपी एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर एक कोर्स है, सर्टिफिकेशन है, और ग्लोबली स्टैंडर्ड है, उसके मतलब स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंस है पूरा, एफपीएसबी यूएसए के थ्रू। तो मैंने कहा क्यों ना इसको परस्यू किया जाए, और राइट वे में लोगों को गाइड किया जाए, मतलब फाइनेंशियल प्लानिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके। तो ये एक मुझे एक चीज बताइए कि सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर का रोल क्या है एक झांसी के लिए। सपोज वो अपने शहर में भी किसी एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर के पास जाए, तो फर्स्ट थिंग इज व्हाई शुड दे गो टू हिम। सेकंड थिंग इज इफ दे गो टू हिम व्हाई शुड दे ट्रस्ट हिम। तो बिकॉज आप अपना पैसा हार्ड एंड मनी किसी और के एडवाइस पे लगा रहे हो, तो एंड हुम शुड दे ट्रस्ट। तो दो तीन क्वेश्चंस निकल के आते हैं। जी सर, सीएफपी के पास क्यों जाएं, मैं ये बोलूंगा सर, सीएफपी जब हमने किया सर, इट इज नॉट इजी। सर मैंने 4 लेवल क्लियर किए हैं सर, लेवल 1, 2, 3, एंड लेवल 4 इज ऑल मतलब वो 3 लेवल्स के भी अलग लेवल है सर वो। तो इट इज नॉट इजी फर्स्ट ऑफ ऑल, और हमने सर एथिक्स गाइडलाइंस एंड एथिक्स बेसिक एथिक्स के साथ काम करने का हमने एक सिग्नेचर किया हुआ है, हमने एक वो डिक्लेरेशन किया हुआ है कि भाई क्लाइंट फर्स्ट हमारे लिए,
हमें क्लाइंट्स की नीड्स को सबसे पहले ये तो पहले हर देखना। डॉक्टर भी करता है, ये तो हर लॉयर भी करता है, वैसे मैं बोलूं। बिल्कुल 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 करते हैं सर, बिल्कुल करते हैं। और उसमें भी जाते हैं, मतलब डॉक्टर, मेरे को पता है पीछे एक वीडियो आई थी नहीं जहाँ पे नहीं, वो कमर्शलाइजेशन लेट्स होता नॉट है। डिस्कस द टाइम सिंह, चलो दैट इज अ पार्ट। सो माय जी फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई अ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर? तो आपने पढ़ाई करी है, ओके। जी जी सर, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर इसीलिए सर क्योंकि वो ही एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए प्रोफेशनल है। यस, RIAs होते हैं इंडिया में, विच यू कैन गेट इट इनटू। आप NISM के एग्जाम दे सकते हैं, 10A 10B होते हैं उनके, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के। और सेबी के अगर आप सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आप फॉलो करके RIA के लाइसेंस भी ले सकते हैं उनकी, पर आपको सारी कंप्लायंसेस करने पड़ेंगे। तो वो आप कर सकते हैं, RIA के साथ भी आप जा सकते हैं। बट RIA, सारे IRAs सीफेयर्स को हैंडल कर पाए, ये एक आपको देखना पड़ेगा कि Jaganmeet, उनकी let's do a एक्सपर्टीज। drill. Let's do a drill. I am a chief engineer. I come to you as a client. I जी। come to you as a chief financial planner. तो लेट्स हाँ। जस्ट स्टार्ट कि आप कैसे स्टार्ट करेंगे मेरे साथ, ताकि मैं चाहता हूं कि व्यूअर्स जाने कि हम्म एक प्लानर क्या पूछता है और अगर एक जहाजी प्लानर है तो वो क्या हम्म पूछेगा। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। सी, व्हेन आई एम मेकिंग दिस वीडियो, व्हेन आई सॉ योर लिंक्डइन, आई रियलाइज दैट देयर इज अ शिपी हु इज डूइंग समथिंग डिफरेंट। एंड टू हम्म बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे पास दुनिया को कोई और सीएफए आ जाए और मेरे पास हम्म एक जहाजी सीएफए आ जाए, सीएफपी आ जाए, सॉरी। सो आई विल हम्म बी ट्रस्टिंग दैट जहाजी सीएफपी मोर बिकॉज ही विल, आई बिलीव that he will be understanding our needs much more than the person who has not been on ship. This is what I राइट believe. So अब आप राइट क्या पूछेंगे मेरे से? Let's just start. सर, अगर मैं ऐसे CFP और आप मेरे पास आए हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए, तो सर मेरे को पूरी आपकी बैठ के वी हैव टू फॉलो 6 स्टेप्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। तो इसमें 6 स्टेप्स होते हैं सर। इसको एगाडिम बोलते हैं। पहले एस्टेब्लिश करेंगे कि आपके साथ कम्युनिकेशन, ठीक है। उसके बाद फिर आपके बारे में एनालिस करेंगे, आपकी पूरी सिचुएशन के, आपके ITR और आपके एक्सपेंसेस, इनकम, आउटकम, नेटवर्थ आपकी देखनी पड़ेगी। वो सारी चीजें सर मेरे को एक बाय एक ना सब कुछ चेक करना पड़ेगा। उसके बाद ही होलिस्टिक फाइनेंशियल प्लानिंग में आपको करके, मतलब हम कर पाएंगे। ऐसे नहीं कि आप आएंगे, आप मुझे बोलेंगे यार सबसे ज्यादा रिटर्न वाला मेरे को प्रोडक्ट बता दे यार, मेरे को सबसे, नॉर्मली यही लोग बोलते हैं। बट मैं लोगों को बोलता हूँ पहले आप अपने गोल्स बताइए, अपने एस्पिरेशन बताइए, आप टेन्योर बताइए कि आप कब तक होल्ड करेंगे उसको। यू नो वो कई लोग मेरे को आके बोलते हैं सर, बोलते हैं मेरे को ना ये पर्टिकुलर फंड का ही मेरे को म्यूचुअल फंड खरीदना है। तो दे आर कमिंग फॉर डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली मेरे पास। वो फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए नहीं आ रहे हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग सर आपको टाइम देना है, और लोग टाइम भी नहीं देना चाहते हैं। मैं सबको बोलता हूँ आई नीड टाइम, बिकॉज फाइनेंशियल प्लानिंग इज अ प्रोसेस। इट इज नॉट अ वन टाइम अ ट्रांजेक्शनल। आपने आए, आपने मेरे से पूछा यार। और लोग क्या करते हैं, लोग स्टॉक टिप्स मांगते हैं, अरे स्टॉक बता दो कौन सा बढ़ेगा, ये बढ़ेगा वो बढ़ेगा। बट अगर हम सर प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे तो हमें इसकी जरूरत ही नहीं है सर। इन्वेस्टमेंट बहुत सिंपल है, हमने ही उसको कॉम्प्लिकेट करके रखा हुआ है। क्योंकि हमारे पास सर पैसा होता है तो हम क्या करते हैं, हम ये भी बाय कर लें, हम वो भी बाय कर लें, हम ये भी बाय कर लें। जब पैसा है तो कंट्रोल में होता है बंदा कि यार हम ये भी करके देख लेते हैं, हम ये भी करके देख लेते हैं। बट दैट इज नॉट द वे फाइनेंशियल प्लानिंग वर्क्स। अंडरस्टूड। सो अगर मैं इस तरह से पूछूं तो वन ऑफ द क्वेश्चंस कैन बी कि आपका मंथली खर्चा कितना है, फिर आपका आ सकता है कि इन्फ्लेशन आप साथ में लगा लेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी कि आपकी टोटल इनकमिंग कितनी है। फिर आप पूछेंगे बड़ा साहब आप कितने टाइम तक सेलिंग करना चाह रहे हैं, बड़ा साहब राइट राइट कब आप सेलिंग छोड़ना चाह रहे हैं। उसके बाद राइट आपका राइट। घर का खर्चा इतना, उसके बाद आप क्या क्या चाहते हैं, उससे यस यस। आप इतना पैसा इन्वेस्ट कर चुके हो, इससे कितने परसेंट रिटर्न आने वाली है। तो ये सब चीजें करके आप बनाएंगे भाई, ये 5 साल नहीं, आपको 7 साल बिल्कुल सेल करना पड़ेगा। इसमें आप इतना पैसा लेकर आओगे, इसमें से इतना पैसा यहां लगाइए, इसमें आपको इतना परसेंट रिटर्न मिलेगा, समथिंग लाइक दैट। सो एंड इट विल राइट। बी ऑन अ एक्सेल शीट व्हिच इज क्लियरली इन नंबर्स व्हिच आई। एक्सेल, यस, एक्सेल शीट एंड वर्ड फाइल पूरा बनेगा। अब मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी पार्टनर के साथ आए मेरे साथ। वाइफ के क्योंकि साथ। सर वाइफ के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों को मिलके डिसीजन लेने हैं। कभी कभार क्या होता है सर, हमने देखा हुआ है कि कपल्स में ना, जैसे आपने कुछ इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं तो आपकी वाइफ को नहीं पता होंगी, तो सर इनहेरिटेंस में बहुत दिक्कत आएगी। मैं सिर्फ इन्वेस्टमेंट प्लानिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, फाइनेंशियल प्लानिंग में इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, रिस्क मैनेजमेंट, एस्टेट प्लानिंग, टैक्स प्लानिंग, सब कुछ इन्वॉल्व होता है। तो इट इज अ होलिस्टिक प्लानिंग होती है पूरी, और इट टेक्स टाइम। ये एक दिन में नहीं होता, पूरा महीना लग जाता है सर एक प्लान बनाने में किसी बंदे का। जगनमीत, एक जहाजी जी। एक अपनी सिटी के सीएफपी के पास और हम्म अपनी सिटी में कोई सीएफपी जो कि जहाजी है, किसके हम्म पास जाए और क्यों?
सर वैसे उसको अगर सीएफपी ढूंढना है तो एफपीएसबी की वेबसाइट पे जाए, वहां पे सीएफपी डायरेक्टरी है, उसमें से वो कोई भी सीएफपी ढूंढ लीजिए। जरूरी नहीं है कि जगनमीत सिंह गांधी के पास ही आना है कि भाई वो जहाजी और है, अपने ऐसा शहर नहीं में है। भी जाना है, बट क्वेश्चन ये है कि और कैसे पता चलेगा कि कितना अच्छा ना हो। अगेन आपने एक वेबसाइट बताई, प्लीज शेयर द लिंक सो दैट आई कैन मेंशन इन द वीडियो डाउन बिलो ओवर हियर। जी और जी जी। सेकंड क्वेश्चन इज कि ये भी तो पता करना है, चलो सीएफपी देते सारे हैं, बट अच्छा हम्म। कौन सा है ये कैसे पता चलेगा? सर उसके एक्सपीरियंस पे जाइए। अब जैसे मैंने स्टार्ट किया है अभी, तो मे बी लोगों को लगेगा यार ये तो अभी नया नया आया है, ठीक है, बट उनको ये नहीं पता सर कि मैं बाद में, मेरे पास एक्सपीरियंस है ऑलरेडी, मर्चेंट नेवी में हमें काफी अच्छा हैंडसम सैलरी मिलती है, तो हमने वो हैंडल किया हुआ है मनी को। अब कोई नया स्टार्ट किया, जैसे मेरे साथ कलीग्स थे सर, मैं आपको बताता हूँ, मेरे साथ कलीग्स थे एमबीए किए हुए, जिन्होंने एमबीए फाइनेंस किया होता, वो भी सीएफपी करे थे, और बोलते हैं हमें एमबीए में भी ये चीजें नहीं सिखाई गई जो हमें सीएफपी में सीखने को मिली। तो आप ये समझिए। और मेरे साथ ऐसे भी थे जो अभी जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, वो कॉलेज स्टूडेंट्स थे बच्चे, अभी जस्ट ग्रेजुएशन किया और वो सीएफपी कर रहे थे, तो दे डिडंट हैड एक्सपीरियंस। उनको तो मैं ही बता पा रहा था कि यार ऐसे से करो प्रैक्टिकली, क्योंकि प्रैक्टिकली मैंने वो सारी इन्वेस्टमेंट्स कर रखी है, मैंने इनहेरिटेंस देख रखा है, मैंने बहुत कुछ चीजें एक्सपीरियंस कर लिया ऑलरेडी। तो मेरे लिए सीएफपी वॉज मोर इजी टू डू, प्रैक्टिकली मैंने वो चीजें की हैं। और कहीं ना कहीं सीफेयर्स ऑलरेडी कर चुके हैं, बिकॉज काफी हैंडसम मनी आता है, तो ऑलरेडी दे आर उन्होंने काफी अच्छा एक्सपीरियंस लिया हुआ है सब सीफेयर्स को। उनको एक गाइडेंस की जरूरत है। और इसमें ये चीज बस ध्यान रखनी है कि हमें ग्रीड नहीं रखना सर, हमें अपने इमोशंस पे काबू रखना है सबसे एंड इंपॉर्टेंट तो प्रॉपर। कैरेक्टर, सबसे बस इंपॉर्टेंट तो कैरेक्टर ही इन्वेस्टमेंट में। बिहेवियर फाइनेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। जगनमीत, थैंक यू वेरी मच फॉर गाइडिंग विद दिस थिंग। आप वो लिंक शेयर कीजिएगा। मैं यहाँ पर सबसे कहना चाहता हूँ वंस अगेन टू ऑल दी सीफेयर्स, इन्वेस्टमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जगनमीत का लिंक्डइन कंटेंट मैं डाल दूंगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में जगनमीत एज अ ब्रदर, इफ यू आर अ सीफेयर यू कैन टेक हिज एडवाइस, ही विल गाइड यू उस मामले में, इनिशियल मामलों में, कि भैया यहाँ पर जाके ये चीज देख लो, यहाँ पर जाके ये चीज देख लो, इट विल हेल्प यू। इन केस ऑफ एनी अदर फाइनेंशियल एडवाइस यू कैन ऑलवेज, मैं जगनमीत का लिंक्डइन हैंडल प्लस राजीव कौशिक सर का टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी आप लोगों के नीचे शेयर कर रहा हूँ। आप राजीव कौशिक सर के वीडियोस भी देख सकते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, और अगर जगनमीत के साथ अगर आगे मैंने कुछ वीडियोस बनाए तो वो भी आप देख सकते हैं, जस्ट टू गेट इन्फॉर्मेशन। बट आज के इस वीडियो से मैंने ये सीखा कि लोन एक खतरनाक चीज है, लोन से बच के रहिए, वो आपके सपने क्रश कर देता है। हमें लगता है कि सपने बनाता है, नहीं, सपने बर्बाद कर देता है। विद दिस ऑल आई कैन से थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जगनमीत, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।